السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فأيها الطلبة سندرس في هذه الحصة المصطلح، وندرس في المصطلح قسم الخبر المردود واسباب رده کی خبر مردود یعنی وہ خبر مردود کیا ہے؟ ردہ یا ردو سے، یعنی وہ خبر جس کو رد کر دیا گیا ہو، جو کہ دھتکاری ہوئی ہو، یعنی قابل قبول نہ ہو۔ وہ اسباب رده، اور اسی طریقے سے ان خبروں ان حدیثوں کو پڑھنا کہ ان کا اسباب رد، بھائی ایسے تو ہم نہیں کسی حدیث کو رد کر سکتے ہیں نا، کچھ وجہیں، کچھ اسباب، کچھ وجوہات رہے ہوں گے جن کی بنا پر ہم حدیثوں کو رد کرتے ہیں یا کیے ہیں یا کریں گے۔ تو وہی کہا کہ اگر آپ خبر مردود کیے، خبر مردود ہے تو کیوں مردود ہے اس کی بھی وجہ ہمیں جاننی ضروری ہے، تو اس کا بھی تذکرہ مصنف رحمہ اللہ کریں گے۔ وہی کہا الخبر المردود واسباب رده، کہ وہ خبریں جو قابل قبول نہیں ہیں اور اسی طریقے سے ان کے ناقبول کیے جانے کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، کن بنا پر ہم ان خبروں کو رد کر رہے ہیں، ان کا بھی ذکر ہم کریں گے، ان کو بھی ہم پڑھیں گے۔ قال الخبر المردود هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، کہ وہ حدیث جس کے خبر دینے والے اور انفارمیشن دینے والے اور بتلانے والے کے سچ کا پتہ نہ چلے، یا اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ جو بندہ خبر دے رہا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، جھوٹا ہے۔ لم يترجح صدق المخبر به، کہ جو خبر ہے اس کے خبر دینے والے کے سچ کا پتہ نہ چلے، یعنی وہ سچ نہیں بول رہا ہے بلکہ وہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ کہتے ہیں وَيَنْقَسِمُ إِلَىٰ أَنْوَاءٍ كَثِيرَةٍ، اور یہ خبر مردود اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، یعنی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، حدیثوں کو رد کیا جاتا ہے، اور ان کے الگ الگ نام ہے، مرسل، معلق، منقطع، معضل، تدلیس، اور اسی طریقے سے سوء حفظ، شدت الغفلہ، یعنی آپ معلل، مضطرب، مدرج گناتے چلے جائیے، بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو یہ کہا وَيَنْقَسِمُ إِلَىٰ أَنْوَاءٍ كَثِيرَةٍ، اور یہ منقسم ہوتی ہے بہت ساری قسموں کی طرف، یا اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ بلغ بها بعضهم الى نيف و40 نوعا، بعض نے تو اس کی یعنی ضعیف حدیث کی قسمیں یا ضعیف حدیث کے جو اسباب ہے ضعف کے، جن کو ہم نے الگ الگ نام دیا ہے، ان کی تعداد 40 سے اوپر تک پہنچتی ہے۔ کتنی ہے؟ نیف و 40، 43 سے 49، یعنی کہ 40 سے اوپر ہے۔ کہتے ہیں وہی ترجع فی الجملۃ الی سبعین، لیکن جب ہم غور کریں گے، جب ہم ڈیپلی سوچیں گے، then we find there is only two reason،
کہ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही असबाब हैं, मेन जो असबाब हैं वो दो ही है, और बाद में फिर इनके सब ब्रांचेस एंड शाखाएं हैं कि इनके सब अक़साम हैं। मेन जो है दो है, उसके बाद उनमें दोनों के अक़साम हैं। अब चाहे वो 20 पहुंचे, चाहे वो 40 पहुंचे, चाहे वो 100 पहुंचे, बाद ने तो 350 किस्में ज़ईफ़ हदीस की है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। कहते हैं अहदुहुमा, उन दोनों, वन ऑफ देम, उन दोनों में से जो पहला है, सुकूत राविन फ़अक्सर मिन अस्सनदी, सुकूत राविन फ़अक्सर मिन अस्सनदी, किसी एक या एक से ज्यादा रावी का सनद के अंदर साकित होने जाना। सकता के माने क्या है? गिरने के, यानी कि सनद के अंदर रावी का जो जगह है जहां पर उसको होना चाहिए था वहां से वो नहीं होता, वहां से गिर जाता है। तो गोया कि जब दो रावियों के बीच में कोई गिर जाता है तो वहां पर खलल पैदा हो जाती है, और जो रावी गिरा हुआ है उसकी ना तो हमें हालत के बारे में मालूम है, ना उसके आयन के बारे में मालूम है, ना उसकी शख्सियत के बारे में मालूम है, पता नहीं वो कैसा आदमी था। तो यहाँ पर हम मुस्तर होते हैं कि उस हदीस को रद्द करें। तो यानी कि जो मेन दो सबब है हदीस के ज़ईफ़ होने का, उनमें से पहला सबब है सख्त। अब सख्त के अनवा हैं कि शुरू सनद में सख्त है, कि बीच सनद में सख्त है, कि आखिर सनद में सख्त है, कि लगातार दो दो रावी हज़फ हो रहे हैं, कि सहाबी को हज़फ किया जा रहा है, कौन हज़फ हो रहा है। अब यानी इसके अक़साम है, मुअल्लक़ है, मुरसल है, मुअज़्ज़ल है, मुनक़ति है, ये सारी चीजें किसके हैं? सख्त के अक़साम हैं। उसके बाद जो दूसरा मेन किस्म है, एंड जो दूसरा है वो है अत्तानु फी बाज़ रुवातिही, कि सनद के अंदर सख्त तो नहीं है लेकिन रुवात के अंदर तान करना, रुवात के अंदर जर्ह करना। क्या करना? रुवात के अंदर जर्ह करना। अगर कोई चीज ऐसी पाई जा रही है उनके अंदर जो उनकी अदालत को या ज़ब्त को, अब तान में दो दो चीजें आती हैं, एक रावी की अदालत आती है, एक रावी की ज़ब्त आती है। अदालत कि वो मुस्लिम था, आकिल था, बालिग था, अस्सालिम मिन अस्बाबिल फिस्क व ख़वारिमिल मुरुवत था कि नहीं था। अब इनमें जो उसकी अदालत में हम देखेंगे 5 चीजों का वो हामिल था कि नहीं। मुस्लिम, काफिर अगर हो गया तो रद्द, आकिल अगर आकिल नहीं है तो रद्द, बालिग अगर बालिग नहीं है तो रद्द। इसके बाद अस्सालिम मिन अस्बाबिल फिस्क, अस्सालिम मिन अस्बाबिल फिस्क में बहुत सारी चीजें आती हैं, कज़्ब आती है, फिस्क आती है, और इसी तरीके से बिदअत आती है, और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है, मासी आती हैं। तो देखेंगे कि इन तमाम चीजों का वो हामिल है कि नहीं है। उसके बाद वह ख़वारिमुल मुरुवा, ख़वारिम मुरुवा का वो मुर्तकिब तो नहीं हो रहा है। तो जो तान फी बाज़ रुवाती में जो पहला है कि अदालत, उसको हम देखेंगे कि वो अपने अदालत में मुकम्मल है कि नहीं, मुकम्मल तो रावी है कि नहीं। उसके बाद मुंतकिल होंगे रावी की ज़ब्त की तरफ, कि रावी मुकम्मल तौर पर हदीसों का ज़ाबित, चाहे वो ज़ब्त उसका ज़ब्त किताब हो, चाहे उसका ज़ब्त वो ज़ब्त सदर हो, और लेकिन कहीं ऐसी चीज का वो मुतहम्मिल तो नहीं है जो उसकी ज़ब्त के अंदर खलल पैदा करे, जो इसके मफ़हूम मुखालिफ है, जो इससे जो ज़ब्त की शर्त लगाने से खारिज हो जाती हैं, चाहे वो शिद्दतुल गफला हो, चाहे वो सूल हिफ्ज़ हो, चाहे वो फुहशुल गलत हो, चाहे वो वहम हो या कसरतुल मुखालफा हो। ये सारी चीज़ें जिनका हम ज़ब्त की शर्त लगाने के बाद ये सारी चीज़ें खारिज हो जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखेंगे तो जो मेन 2 सबब हैं हदीस के ज़ईफ़ होने के, वो हैं अस्सख्त
यानी सनद मुकम्मल ना हो, सनद के अंदर कहीं खलल हो। फिर सख्त में जो उसके अनवा है उन तमाम चीज़ों को देखेंगे, सख्त के किस किस्म से ये ताल्लुक़ रखती है। और दूसरी तान फिर रुवा, तान में कहीं उसकी अदालत में तान तो नहीं है या उसके ज़ब्त में तान तो नहीं है। अदालत में जो भी है आपको बताया कि आकिल सालिम बालिग सालिम मिन अस्बाबिल फिस्क व खबारिब मुरुवा। उसके बाद ज़ब्त में चाहे ज़ब्त सदर चाहे ज़ब्त किताब हो, और जो इसके ज़ब्त का शर्त लगाने के बाद जो चीज़ें खारिज जाती हैं, सहीउल हिफ्ज़, फोशुल गलत, कसरतुल गफला, कसरतुल वहम, कसरतुल मुखालफा, ये तमाम चीज़ें तो नहीं हैं। उसके बाद मुसन्निफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं जो सख्त, अब पहला किस्म लिए हैं सख्त, अब उन तमाम चीज़ों को जिक्र करेंगे जो सख्त से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी शुरू सनद के अंदर सख्त कि आखिरी सनद के अंदर सख्त हो रहा है, गिर रावी हज़फ हो रहा है कि बीच सनद के अंदर या क्या मामला है। तो सबसे पहले अनवाउ सख्त जिक्र कर रहे हैं कि सख्त की कितनी किस्में हैं, सख्त कितने इतबार से हो सकता है। तो अनवाउ सख्त या अनवाउ सुकूत जो दो हैं, एक है जली, एक है खफी। जली मतलब वादे हो, कोई रावी सनद के अंदर हज़फ हो रहा हो और उसमें हर आदमी, हर किसी की, कोई चाहे वो इब्तिदाई तालिब इल्म हो हदीस का, उलूम हदीस का, वो भी उसका पता लगा सकता है और उसको देख सकता है। यानी कि रावी यहाँ से हज़फ है, ये तो ताबई हज़फ है या तो साहबी हज़फ है या तो फलां रावी हज़फ है, क्योंकि दोनों उसके और उसके शेख के बीच में काफ़ी तबायुन है, दोनों के आपस में मुलाकात नहीं, बीच में कोई ना कोई रावी ज़रूर है जिसको हज़फ कर दिया गया। यानी हर कोई आम आदमी भी इसका पता लगा सकता है। लेकिन जो दूसरी किस्म है सख्त की, वह सख्त खफी। तो कहा अस्सख्तु मिनल इस्नाद नौआनी, कि सख्त जो इस्नाद से होती है, सनद से होती है, उसकी दो किस्में हैं। एक है वाज़िहुन जलीयुन, जो कि वाज़े होती है, जली होती है, खफी नहीं होती है, हर कोई किसी के बस की बात है कि इसको उसका पता लगा सके। कहते हैं यहसुल इश्तराक फी मारिफतिही, इसकी मारिफत में हर किसी को सभी क्या है, मुश्तरक है, यानी हर कोई इसका पता लगा सकता है, हर कोई इसकी मारिफत हासिल कर सकता है कि यहाँ सनद के अंदर सख्त है। और जो दूसरी किस्म है सख्त की, वो है खफी। ला युद्रिकहु इल्लल जहाबज़ा अल मुत्तलिऊन अला तुर्क़िल हदीस व इल्ल असानीद। कहते हैं कि जो दूसरी किस्म है सख्त की, वो है खफी, और इसका पता हर किसी के बस की बात नहीं है कि हर कोई उसका पता लगा सके, बल्कि इसका पता वही लोग लगा सकते हैं अल जहाबिज़ अल मुत्तलिऊन, वो माहिर और अक्ल शख्सियत जो इल्म हदीस पर पकड़ रखती हो, सनद और उसके तमाम चीज़ों पर उसको पूरा कमान हासिल हो, अला तुर्क़िल हदीस, हदीस के तुर्क पर कि हदीस कितने कितने तरीक़ों से आई है, क्या क्या कहाँ कहाँ मरवी है, व इल्ल असानीद, और इसी तरीके से असानीद के अंदर जो इल्ल खफिया होते हैं उन तमाम चीज़ों को उसके पास क्या है, इल्म है। तो वही बंदा खफी, जो सख्त खफी होती है सनद के अंदर, उसका पता लगा सकता है। कहते हैं वल अव्वल युरफ बिअदम मुलाकात रावी लिमन रवा अन्हु, जो वाज़िह जली है, जो वाज़िह है और जली है सनद की सख्त की पहली किस्म। कहते हैं वल अव्वल, जो पहला है, इसको आप पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं, बिअदम मुलाकात रावी लिमन रवा अन्हु, इससे कि रावी जिससे रवात करता है दोनों की मुलाकात साबित नहीं है। इम्मा लिअन्नहु लम युद्रिक असरहु, या हो सकता है कि दोनों के असर के दरमियान यानी काफी गैप हो कि इसने उसका असर, उसका जमाना नहीं पाया, या पाया लेकिन दोनों के इलाके मुख्तलिफ थे, दोनों कभी एक साथ इकट्ठा नहीं हुए। वलैसा लहु मिन्हु इजाज़ा वला वजादा, और जो कि तहम्मुल हदीस की एक किस्म है, इजाजत की। आप कोई शेख है, वो अपने किसी को कहे कि आप मेरी हदीसें ये रवायत कर सकते हैं बगैर उसको पढ़ाए हुए, उसको अपना नुस्खा दे दे कि ले जाइए, इसके अंदर जितनी हदीसें आप है उसको आप रवायत कर सकते हैं। और इसी तरीके से वेजादा, ये भी तुर्क़ुत तहम्मुल की एक किस्म है। कहते हैं वलिज़ा यहताजु इला इल्म तारीख़ लितज़म्मुनिही तहदीद मवालिद रुवाती व वफ़यातिहिम व अज़मान तलबिहिम व इर्तिहालिहिम, इसी वजह से इस चीज़ के लोग मुहताज होते हैं इला इल्म तारीख़, उस तारीख़ का, लितज़म्मुनिही तहदीदी मवालिद रुवात, जो कि रुवात के
پیدائش کا باقاعدہ فکس ٹائم اور ان کی وفات کا، اور اسی طریقے سے ان کے زمانے طلب کا اور زمانے ارتحال کا یعنی رحلت کرنا کا علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، تو جو بھی ان تمام چیزوں کو جانے گا وہ بآسانی سے پہلے قسم کا پتہ لگا سکتا ہے۔ اور آج کا درس اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔